Good morning everyone. So today I am going to start a very interesting chapter for class 10, and the chapter is how do organisms reproduce. Nature has created all the living organisms and given the power that they can keep on continuing their species, their types, right? So let us begin this chapter with the meaning reproduce or reproduction, right? So what is the meaning? If we go for the literal meaning says that reproduction, re मतलब फिर से production of what? Of the same type, है ना? You travel from one city to another, one state to another, बट आपको मैंगो ट्रीज हर जगह दिखते हैं, आपको डॉग्स हर जगह दिखते हैं, आपको कैट्स हर जगह दिखती हैं. तो देर आर सर्टेन ट्रीज, मोस्टली द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मैरीगोल्ड है, रोज है, हिबिस्कस है, इजंट इट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन्स है ना. आपको आपकी वैरायटी विथ अ लिटिल वेरिएशन हर जगह दिखती है. तो कैसे पॉसिबल है ये? बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट प्लांट्स, बी इट एनिमल्स, बी इट लिविंग, बी इट यूनिसेलुलर, बी इट मल्टीसेलुलर, they all have the capacity to produce their own kind. So that is the reproduction definition, that ability to produce their own kind, है ना. ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की. मीनिंग यही आनी चाहिए. आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर यू कैन रिकलेक्ट, बट द मीनिंग शुड बी सेम. नाउ द पॉइंट अराइजेस दैट what is the need for reproduction? Very good. Need क्या है भाई? क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? आप बिना सोचे समझे खाते पीते रहते हो, दाल चावल, वॉट एवर यू लव टू ईट, एग्स, चिकन, मीट, फिश और वॉट एवर, राजमा, छोले. आपने कभी सोचा कि सपोज एक क्रॉप हुई है, ठीक है, राजमा की, और उसके बाद उसके प्लांट्स होने बंद हो जाएं? मीन्स यू विल नेवर गेट राजमा अगेन, मीन्स यू विल नेवर गेट छोले अगेन, मीन यू कैन नेवर गेट राइस अगेन, है ना. या आपने मटन खाया और चिकन खाया और उसके बाद मुर्गियां होनी बंद हो जाएं, आप क्या दोबारा चिकन खा पाओगे? नहीं. तो व्हाट इज़ द नीड? आप कहीं पर भी जाते हो, आपको मैंगो इजीली अवेलेबल हो जाता है इस सीजन में, है ना. आप कहीं पर भी जाते हो, आपको वही चीज़ें हर जगह दिखती हैं. नीम का पेड़ हर जगह दिखेगा, इमली हर जगह दिखेगी, है ना. किसी जियोग्राफिकल बैरियर्स जहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वहाँ पर नए तरीके के भी पेड़ मिलते हैं. लाइक इफ़ यू गो टू द डेजर्ट यू विल फाइंड मोर ऑफ द कैक्टस, है ना. इफ यू गो ऑन द हायर एल्टीट्यूड्स माउंटेन्स यू विल फाइंड मोर ऑफ द चीड्स एंड देवदार्स, कॉनिफर्स, राइट. So the point is that what is the need? Need is for the continuity of the species. Why is reproduction important, or what is the need for reproduction? For the continuity of the species. For the continuity of the species. So very quickly let us start this chapter. And if I say that reproduction is of two types, okay. If I say reproduction is of two types, then it is, we can categorize it into two types: asexual and sexual. Now what is this? Asexual, you are already aware that only one parent is required. Sexual reproduction, two parents are required.
ठीक है. So sexual reproduction we'll definitely study. We'll study in the second half of this chapter, and what is that? Yeah, we'll begin with the asexual reproduction. Animals also have asexual reproduction. Plants also have asexual reproduction and sexual reproduction both, right? So let us begin with the asexual reproduction. And okay, asexual reproduction, we know it, only one parent is there. DNA is copying, but DNA कॉपिंग में हमेशा एरर आती ही आती है. 100% सेम टू सेम कॉपी नहीं होती है. तो वो जो थोड़ी बहुत एरर्स होती हैं उनकी भी वजह से थोड़े थोड़े से हल्के से वेरिएशन आते हैं ना. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है पेरेंट्स से, बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. On the other hand, in sexual reproduction, DNA mixing is there. See, I am using two words, DNA copying and DNA copying plus mixing. Copying भी हो रही है और mixing भी हो रही है, इसलिए sexual reproduction में variation ज़्यादा होते हैं, है ना. Example, we are there, we resemble our paternal side, we resemble our maternal side also. So इनके यूजेज हम लोग आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे कि what are their advantages. But yes, for the sake of differentiation, asexual reproduction has less variation. So the species is same, but they are not identical, right? And in sexual reproduction, more of the variations are there, right? So let us begin with the asexual reproduction. And we are going to study their types, right? So first of all, you note down how many types are there, and then we shall go in detail. Let us see, right? So the first type is fission. I'll take one by one. Fission. Then we have budding, and it's better you study by making a flow chart, otherwise it becomes little difficult to understand. Okay, then we have spore formation. Then we have, after spore formation, we have fragmentation. हम लोग एक एक करके इसके बाद पढ़ेंगे. फ्रैगमेंटेशन यहाँ हटा दे रही हूँ मैं. After fragmentation, we have regeneration, and lastly we have vegetative propagation, or I can do it like this, vegetative propagation. ये दो तरीके का होगा. प्लांट्स में ही होता है vegetative propagation. What are the two kinds of vegetative propagation? एक होगा आपका natural और दूसरा होगा आपका आर्टिफिशियल. हम लोग डिटेल स्टडी लेके चल रहे हैं. अब आप अगर चैप्टर में पढ़ने जाएंगे यू माइट गेट कंफ्यूज. इट्स बेटर यू स्टडी थ्रू द फ्लो चार्ट, राइट? सो लेट अस बिगिन विद द फिशन. और फिशन में देखते हैं क्या होता है. फिशन इज ऑफ टू टाइप्स. बेसिकली फिशन में आप लिखिए कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, ठीक है. फिशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. पहला है आपका बाइनरी फिशन. द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग बाइनरी, मतलब बाई मीन्स टू. तो ऑर्गेनिज्म जो था वो टू में डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है. ये हो गया आपका अमीबा. एग्जाम्पल बाइनरी फिशन, अमीबा हो गया. देन यू हैव पैरामीशियम. दे शो पैरामीशियम, राइट. देन एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा हो गया हमारा मल्टीपल फिशन, ठीक है.
मल्टीपल फिजन, वेरी सिंपल, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग मल्टीपल फिजन में एक ही सेल से बहुत सारी सेल्स डेवलप होती हैं। सो ये हो गया आपका मल्टीपल फिजन। होता किसमें है? आपका मलेरियल पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम, इट इज अ प्रोटोजोआ, है ना। तो ये प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम, दैट इज वाई जैसे ही मलेरिया का इन्फेक्शन बॉडी में आ गया, मल्टीपल फिजन हो जाते हैं और बहुत तेजी से बीमारी इन्फेस्ट करती है बॉडी को। सो बिकॉज दे हैव मल्टीपल फिजन। देख लीजिए, ये आपकी एक सेल थी और ये जब डिवाइड हुई है तो इसने ढेर सारे प्लाज्मोडियम बना लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? मल्टीपल फिजन। अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस इज लेशमानिया। ठीक है, लेशमानिया। तो आपको क्वेश्चन कैसा हो सकता है? ऑब्जेक्टिव, व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लेशमानिया और काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन पैरामीशियम। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू गेट फॉर binary fission, for the fission, right? Another type, now we are going to study the another type. Another type of reproduction is asexual reproduction, is budding. You have studied it in different parts and in class 10 we are putting all the parts together, right children? So budding आपको कहाँ मिलती है? ये हमारा हाइड्रा है, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हैं और आपको पता है हाइड्रा पानी में रहता है ना, इट्स अ वाटर एनिमल। ओके, देन हाइड्रा एंड वन यूनिसेलुलर, अनदर एग्जांपल इज हाइड्रा एंड और कहाँ आपने देखी है बडिंग? यीस्ट में, है ना। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट, बडिंग। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, बडिंग। कैसे बड होती है? जैसे आपने एक कली छोटी सी देखी है, पॉलिप इसको हम लोग बोलते हैं, एक छोटी सी बड हाइड्रा के साइड से निकलती है एंड आफ्टर सम टाइम okay, so this bud grows and when it has grown enough that it can be lead a life individually, it detaches itself from the hydra and a new hydra is born, right? Similarly yeast cells, you have seen that they have budding और ये चेन सी यहाँ से कटती जाती हैं और नया यीस्ट बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज budding. Next we have is, after budding we have, right, after budding we had spore formation. कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है फंगस में। ठीक है, आजकल जो स्पोर्स हैं बारिश के मौसम में, they are very happy because they are getting the favorable condition, they are getting moisture and humidity, they are getting warmth also, and so these days you must have seen आपकी शूज़ पे, लेदर शूज़ पे, लेदर बैग्स पे, लेदर बेल्ट्स पे, या फिर अगर कोई एक रॉटनिंग वुडन लॉग है, इवन इफ अ ट्विग इज देयर, है ना, आपने देखा होगा वहाँ पर इवन ब्लैक, ग्रीनिश ब्लैकिश फाइब्रस ग्रोथ इज देयर। क्या है? वो सारे फंगस हैं। कैसे डेवलप हुए? चलिए देखते हैं। एक हमारा ब्रेड का पीस था और वो किचन में छूट गया, फ्रिज में नहीं रखा आपने, उस यहाँ पे क्या है, आपके एनवायरनमेंट में स्पोर्स घूमते रहते हैं। स्पोर्स ब्रेड पे लैंड करे, ठीक है, और आई चेंज द कलर नाउ। ये स्पोर्स जो थे ये जर्मिनेट हुए और यहाँ पे फंगल हाइफा बन गया। इसी फंगल हाइफा को अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे, चलिए हमने 40x 50x जूम किया, ठीक है, क्या हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से हमारे फंगल हाइफा है और
किसी किसी हाइफा में ऊपर जाके ऐसे स्पोरेंजिया है, ठीक है। इस स्पोरेंजिया के अंदर में स्पोर्स भरे होंगे और जब ये मैच्योर हो जाते हैं दे बर्स्ट ओपन और ये सारे स्पोर जो होते हैं ये एयर में फैल जाते हैं। तो these spores are always there, इनकी इतनी ज़्यादा इनके ऊपर होता क्या है, स्पोर्स के ऊपर में थिक कोटिंग होती है, ठीक है। और ये किसी भी कंडीशन में सालों साल रह सकते हैं। द मोमेंट दे गेट फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट, ठीक है। तो आजकल आप में बहुत कॉमन है ब्रेड के ऊपर में राइजोपस है ना, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड। इसी तरह आप अपना खाने का भी अगर टुकड़ा आपका टिफिन में छूट गया तो भी आप 2 दिन के बाद देखिए तो यू गेट अ ब्लैकिश, वाइटिश, ग्रीनिश है ना ग्रोथ ऑन इट। सो दैट इज द फंगस एंड इट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड फंगस। तो हर जगह आपने मशरूम्स भी होते हैं आजकल देखे होंगे, कैसे होते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स जो है वो एयर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रैगमेंटेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन में आपने पानी में देखा होगा रिबन शेप्ड एल्गी घूमती रहती है, ठीक है। ये रिबन शेप्ड एल्गी, इसके अंदर आपका रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सेल्स है तो मल्टी सेलुलर बट सेल्स इसकी साइड बाय साइड अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये वाली सेल्स जहां से भी ब्रेक होंगी, ठीक है, न्यू स्पाइरोगाइरा विल बॉर्न फ्रॉम देयर, ठीक है। एवरी सेल कैन डेवलप इनटू अ न्यू स्पाइरोगाइरा, ठीक है। सो दिस इज हाउ फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े हो रहे हैं इसके। नेक्स्ट वी हैव इज इससे मिलता जुलता ही है हमारा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंशिएशन आता है, आई जस्ट लेट यू नो। तो सपोज हमारा ये प्लानेरिया है, ओके, और अगर हमने इसको 3 हिस्से में काटा है ना, तो एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लानेरिया will develop into a, every part of this planaria will develop into a new planaria, ठीक है। एवरी पार्ट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लानेरिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ से रीजनरेशन हुआ। बट ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस ये है कि अगर सपोज हमने यहाँ से काटा होता और यहाँ पर हमारी रीजनरेटिव सेल्स नहीं हैं तो यहाँ पर रीजनरेशन नहीं होता, ठीक है। और whereas Spirogyra, you cut it from anywhere, it will generate into a new Spirogyra or fragmentation will take place. So for regeneration we need the regenerative cells, right? Only then it will regenerate into a new planaria, right? After regeneration we have vegetative propagation. I'll take a new page for that. Yeah. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये प्लांट्स में होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 तरीके के होते हैं। उसके पहले हम देखेंगे प्लांट्स में 2 तरीके। प्लांट्स को वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम एक प्लांट ले रहे हैं उसका वेजिटेटिव पार्ट क्या हो गया, याद रखिए RSL मतलब रूट, स्टेम एंड लीफ। उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हुआ, यू हैव स्टडीड, दैट इज द फ्लावर एंड सीड। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रूट, स्टेम एंड लीफ। हाउ कैन वी रिप्रोड्यूस फ्रॉम देम? द प्लांट्स ऑफ कोर्स, राइट। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं।
वन इज नेचुरल, द अदर वन इज आर्टिफिशियल. मैन हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग. उन्होंने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ही कराना शुरू कर दिया प्लांट्स में, ऑफ कोर्स अपने फायदे के लिए, है ना. तो नेचुरल में सबसे पहले आप रूट देखिए. रूट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, डहेलिया वगैरह आपने देखा होगा, या स्वीट पोटैटो हो गया, इनके जो रूट्स होते हैं, है ना, इन रूट्स में यू सी दैट देयर आर स्वॉलन रूट्स होती हैं, दे स्टोर फूड, और उसमें आपको रूट हेयर भी दिखेंगे, और छोटी रूट्स भी दिखेंगी. एवरी पार्ट कैन गिव राइज टू अ न्यू स्वीट पोटैटो और डहेलिया, जो भी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैन गिव राइज टू दैट, राइट. नेक्स्ट है हमारा स्टेम. स्टेम में देखिए क्या होता है. स्टेम में वी विल टॉक अबाउट आर वेरी फेवरेट वेजिटेबल, दैट इज पोटैटो. बट मैम पोटैटो तो जमीन के नीचे होता है, तो फिर ये रूट हुआ. नो, लेट अस सी व्हाट पोटैटो इज. इफ दिस इज अ पोटैटो, यू मस्ट हैव सीन दैट इट हैज मार्क्स लाइक दिस. और आप थोड़े दिन, स्पेशली आज के जैसे वेदर में छोड़ देंगे बारिश के उसमें, या जब मॉइस्चर है, यू विल फाइंड दैट देयर आर these small buds are arising and we call these parts an eye, है ना. तो ये buds, branches कहाँ से निकलती हैं? Nodes. This much you know. तो अगर कोई ऐसा प्लांट पार्ट है जिसपे नोड्स हैं, डेफिनेटली उनके बीच का हिस्सा क्या होगा? वो इंटरनोड होगा, है ना. तो एवरी दिस पार्ट कंटेनिंग एन आई कैन गिव राइज टू अ न्यू पोटैटो प्लांट. ठीक है. एंड दैट इज वाई इट इज अ पोटैटो स्टेम. इसको हम बोलते हैं स्टेम ट्यूबर, है ना. दिस इज ऑल यू हैव स्टडीड इन द जूनियर क्लासेस. आई एम जस्ट रिपीटिंग. सो स्टेम ट्यूबर हो गया. उसी तरह से जिंजर इज ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, है ना. जिंजर में भी आपने देखा होगा साइड साइड से बड्स निकलती रहती हैं, और ऐसे उसके ऊपर भी स्केली लाइंस होती हैं. तो ये क्या है? ये नोड्स हैं. एंड सपोज दिस इज अ जिंजर प्लांट. यहाँ से नोड से ही आपको इसमें बड्स निकलती दिखी होंगी, है ना. तो जहाँ से भी आपने काटा उसको और उसको जमीन में लगा दिया, इट विल गिव राइज टू अ न्यू जिंजर प्लांट. जिंजर का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वी कॉल इट राइजोम. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट राइजोम. ठीक है. लेट अस मूव फर्दर. देन वी हैव लीफ. लीफ आपने ब्रायोफिलम की देखी होगी, उसको हम लोग अजूबा भी कहते हैं. थोड़ी बड़ी लीफ होती हैं. और होता क्या है, इस लीफ की जो आउटलाइन होती है, उसमें ऐसे ग्रूव्स होते हैं. वहाँ पर छोटे छोटे आपको ऐसे प्लांट्स लगे दिखेंगे जब भी लीफ मैच्योर होती है. एंड दिस हियर लीफ इज डूइंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो एवरी it drops and give rise to a new bryophyllum plant. ठीक है. सो ये हो गया आपका लीफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ एंड एग्जाम्पल इज ब्रायोफिलम. ये हमारा बड़ा ही स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है, आपको हर बुक में ब्रायोफिलम दिखेगा, राइट. नाउ लेट अस मूव टू द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 तरीके के होंगे हमारे. ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दे आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज कटिंग. कटिंग आपने देखा होगा आजकल बहुत लग रही है बारिश के मौसम में. stem cutting, just cut the stem from the nodes and put it into the soil. The weather is so favorable, the rainy season, that you can grow the new plant. कैसे होता है? किन plants में होता है? Rose, Bougainvillea, Hibiscus, है ना. So stem cutting के लिए you have example of rose, very common example, है ना, rose.
Then next वाला is a little interesting, I would say. It's grafting. ठीक है, grafting में क्या होता है? Suppose I have 2 mango trees. I saw 2 varieties. One variety has suppose हमारे पास है अल्फोंसो, ठीक है, एक हमारे पास है अल्फोंसो जो कि बहुत मीठा है, बट इसका साइज जो है वो छोटा है, ठीक है। दूसरा मैंगो हमारे पास मान लीजिए दशहरी है, किंग दशहरी है, ठीक है। और दशहरी का क्या है, आजकल बहुत आ रहा है, यूपी नॉर्दर्न बेल्ट का बड़ा फेमस नाम होता है ये। इसका साइज जो है वो बड़ा है। I am a farmer, I am greedy, I want that my mango should be bigger in size and sweeter in taste. I want both the qualities. So what will I do? What will I do? When these plants are few say 1 season old, इस हाइट के रहेंगे, है ना, 5-6 फीट की हाइट के हैं, तभी हम इनकी स्टेम दोनों की काटेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ से हमने अपना अल्फोंसो को काटा और यहीं पे हमारा दशहरी का भी स्टेम था, 4-5-6 इतनी पतली जब उसकी स्टेम हो, ठीक है, और इसकी भी हमने स्टेम काटी, ठीक है, ऐसे स्लाइटली डाइसेक्ट किया। ये पोर्शन जो था वो हमने यहाँ लगा दिया और ये वाला जो पोर्शन था, ठीक है, ये पोर्शन हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये स्टेम काट के इसके ऊपर लगाया और इसको इसके ऊपर लगा के उसको हमने सॉइल से चारों ओर से बांधा और उसके ऊपर आपने देखा होगा पॉलीथिन से उसको कवर कर दिया जाता है, आपने देखा होगा टाई करके उसको कवर करके इसको हमने छोड़ दिया 1 महीने के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए छोड़ दिया, मतलब कि ये अब इसका हिस्सा बन गया और ये अब इसका हिस्सा बन गया, ठीक है। ये क्या हो गई, हमने क्या कर दी, ग्राफ्टिंग करी। What did I do? I did grafting. Grafting में क्या हुआ, जो नीचे का हिस्सा था उसको हम बोलेंगे स्टम और उसके ऊपर में हमारा जो दूसरा हिस्सा आया उसको बोलेंगे ग्राफ्ट। ये दोनों कैरेक्टर्स मिल गए, ठीक है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी जो है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही होगी। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपने इमली का और आम का पेड़ लेके ग्राफ्टिंग कर दी तो उसमें आम और इमली दोनों निकल रहे हैं, दिस इज फॉल्स। ओनली द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जाइलम टू जाइलम, फ्लोएम टू फ्लोएम मैच कर रहा है ना। आपने ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमंस में देखा होगा, तो किसी भी ब्लड ग्रुप का किसी में भी तो पॉसिबल नहीं होता है ना। कब पॉसिबल होता है, जब उनके कैरेक्टर्स मैच करेंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला ओ वाले को अपनी किडनी नहीं दे सकता है, हाँ, ओ वाला ए को दे सकता है, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी ओनली दे कैन बी मर्ज्ड। आपने रोज में बहुत सारी वैरायटीज देखी होगी, है ना, कि पिंक रोज है उसमें येलो स्पॉटिंग है, ब्लैक रोज है उसमें पिंक वाइट स्पॉटिंग है। तो ये सब हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले साइंटिस्ट होते हैं, दे डू दिस। लास्ट वी हैव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव propagation is layering, very important. I have a jasmine climber होती है jasmine, और बहुत अच्छे फ्लावर हैं, बड़ी अच्छी खुशबू है। मैं चाह रही हूँ मैं इसको ही मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो हाउ कैन आई डू इट, लेट मी शो यू हाउ कैन वी डू इट। हमारा जैस्मिन का ये रूट्स हो गई, ये हमारी जैस्मिन की ढेर सारी लतर थी, बेल थी, ठीक है। हमने किया क्या, ये वाली को उठाया और इसको हमने गिरा के सॉइल में दबा दिया,
ठीक है, ये हमारी सॉइल है और इसमें हमने इसको मिट्टी से दबा दिया, ठीक है। What will I see that this portion after few days has developed roots and here normally the plant is growing, ठीक है। ये डेड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने सॉइल से जब इसको दबाया इसने जल्दी से रूट्स डेवलप कर ली और फिर हमने यहाँ से काटा। आई हैव अनदर जैस्मिन प्लांट रेडी टू बी ट्रांसप्लांटेड इनटू सम अदर प्लेस, ठीक है। सो दिस इज लेयरिंग. So children, these are the different types of asexual reproduction that takes place in the living world, right? In my next, I would start with the plants, sexual reproduction, right? So this is all about asexual reproduction in the plants and other living world, right? Thank you very much.